मेसी यहाँ पर आजा भाई तू। एक दिन लेट है मेरा पॉडकास्ट। दिस हैज़ बीन हैपनिंग क्वाइट ऑफ्टन नाउ। आई नीड टू डू बेटर एंड नॉट मेक दिस अ हैबिट। बातें करते करते मैं कुछ चीज़ें भी साफ़ कर रहा हूँ। सो मेरे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बट वो मैं पॉडकास्ट में कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि पता नहीं अगर बातें सही वक्त पे कही नहीं जाए तो फिर मूवमेंट निकल जाता है और बात नहीं रहती, सेम बात नहीं रहती, कुछ और बन जाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट जितनी सिंपल है उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है समझने के लिए और जानने के लिए। मुझे लगता है मैंने जो थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंसेस जीवन में लिए हैं, और ऐसे रैंडमली मैं सुबह प्रेयर कर रहा था, पता नहीं कहाँ से मुझे कुछ रैंडम एक थोड़ी बहुत मेमोरीज़ फ्लैश हो गई है, और मैंने अपने दिल को समझने की कोशिश करी उन मेमोरीज़ से कि मैं कैसा रहा हूँ पास्ट में। और बहुत लंबे वक्त तक मैं इस डिल्यूजन में रहा हूँ, झूठ में रहा हूँ कि मुझे लगता था कि कुछ गलत हुआ है मेरे साथ में, या फिर मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं जो मुझे नहीं होना चाहिए था, कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए था लाइफ में। मुझे जिस तरह मैं पहले था ऐसे चलते चले जाना चाहिए था। लेकिन अब स्लोली क्लियर हो रहा है कि वो पार्ट ही है, वो पार्ट था मेरी प्रोग्रेस का, ग्रोथ का। जिस तरह दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ बचपन से, उसकी नेक्स्ट ग्रोथ ये थी। हार्ट ब्रेक या जो भी हार्ड चीज़ें लाइफ में महसूस हुई, वो उसका पार्ट था। तो ये बहुत लंबे वक्त तक मुझे लगता रहा कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद मी, आई नीड टू फिक्स इट। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आडंबर और झूठ लगता है मुझे। और अब क्लियर हुआ है कि देयर आर नो कुड बीज वुड बीज, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड ऑलवेज। इवन डीप डाउन माई सोल वॉज क्रेविंग फॉर दिस, एंड देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ। दिस इज़ वॉट is chosen for me, this is what is destined for me. And a lot of people, they go through their lives, and they think that something wrong was done to them or something wrong has happened to them, and then they need to fix it. So they spend their days trying to fix something that they feel is broken. The moment we are born in a society, we start living in a group we call family, you are bound to reach a point where you are going to experience some form of the heartbreak. Heartbreak means shattering of the so-called script or the story that you were living all along. It can come in any form: losing a parent, losing a pet, losing something, a job, a dream job. You must have had grand plans about your career, but things did not happen that way, or everything was happening perfectly, but then the government had different plans. Some war broke out, and things had to change, and the poor guy is doing his job, man. I can't blame him, making noise. So yeah, उसे क्या पता कि मैं ऊपर बैठ के पॉडकास्ट बना रहा हूँ. Anyway, so when we start thinking, when we get into this spiral of thoughts that something happened to us and we need to fix it, that in itself is terrible and wrong. Life opens doors for us that we were never expecting, we were not ready for, and we won't ever be ready for. Life or creator or creation, there's no obligation upon it
for it to wait, that you should be ready, because if it waits like that, then you will never be ready. Human beings are kings of procrastination and lies and deceit. They spend their days in fooling themselves. They make fake promises from morning till the night. मैं शाम को कॉल करता हूँ, आई डोंट नो ऑन लाइक व्हेन दे से लाइक मैं शाम को कॉल करता हूँ, मैं शाम को मिलता हूँ कल बात करते हैं ना. व्हेन पीपल बिहेव लाइक दिस, आई डोंट इवन नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर दे गिविंग दीज बिग promises, because there are like the entire cosmos is supporting you to live another moment. And you have your own grand plans going on about tomorrow, so which means the entire day has been taken for granted, and you are sure that you will wake up tomorrow morning, and you are sure that that person that you're supposed to meet, that person will wake up tomorrow morning, or you are sure that everything else around you will be the same tomorrow. That in itself speaks volumes, how ungrateful we are as human beings and how disconnected we are from ourselves. ये बात मैं 100 बार बोल चुका हूँ और बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये बात सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ लगती है मुझे. मुस्लिम्स और इस्लामिक उर्दू लैंग्वेज में, मुझे ठीक से पता नहीं, लैंग्वेज वही होगी, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, वो बोलते हैं इंशाअल्लाह, विच मीन्स इफ़ गॉड अलाउस और बाय हिज विल. सो lot of Sufis and lot of scholars, a lot of men of faith, they always end every sentence or start every sentence with inshallah, कि क्रिएटर की मर्ज़ी होगी तो डेफिनेटली मिलेंगे, हम डेफिनेटली ये करेंगे, और शाम का खाना हम साथ में खाएंगे इंशाल्लाह. सो ये कितना खूबसूरत सा एक शब्द है, और इसको इंक्लूड करना अपनी स्पीच में भी कितना अमेजिंग सा डिसिप्लिन है. दैट इज़ इंसेनली ब्यूटीफुल. मैंने जब इस शब्द की गहराई समझी थी कुछ सालों पहले, बड़ा नेचुरली मेरे भी सेंटेंसेस में कभी कभार ये शब्द आने लग गया था, बहुत ही नेचुरली. किसी के सामने बात बोलूँ तो वो लोग बोलते थे तू मुसलमान बन गया. मैं बोलता हूँ भाई तूने इस बात में से यही बात पकड़ी कि मैं मुसलमान बन गया. कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन क्रिश्चियन, भाई हम सारे के सारे इंसान हैं. जिसकी जर्नी में लिखा है कि फ़लाना पाथ से वो अपने ईश्वर को, क्रिएटर को मिलेगा, तो वो करेक्ट है ना. फिर उसमें हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं कि इसने ये रास्ता चुन लिया, मैंने वो रास्ता चुन लिया. सारे रास्ते जा तो एक ही जगह रहे हैं, और सारी सुप्रीम टीचिंग, हर टीचिंग एंड में एक ही जगह पर लेके जाएगी. वो ये है, एक दूसरे की जो कंट्रास्ट है हम सब में, जो अलगपन है, उसको अपनाना ही एक सुप्रीम टीचिंग है. और सारी की सारी जो टीचिंग है एंड में वो इसी रास्ते पे जाती है. वो कॉन्फ्लिक्ट को एंटरटेन नहीं करती है, ओके, वो सिमिलैरिटीज़ को पॉइंट आउट करती है कि उद्देश्य समझो, मैसेज क्या है. सब सब यहाँ पर अपनी ईगो ट्रिप पे लगे पड़े हैं कि अरे पूरी दुनिया को एक ही चीज़ में मानना चाहिए, उनको भी एक ही चीज़ को मानना चाहिए. ये तो ऐसा होगा, जो चीज़ें राजस्थान में जो रेसिपी बनती है, जिस तरह लोग जीते हैं, वो लोग लड़ाई करने लग जाएं कि अरे भाई अंटार्कटिका में लोग ऐसे क्यों नहीं जी रहे. अरे वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ का वक्त अलग है. उस मौसम और एनवायरनमेंट के हिसाब से लोगों ने चीज़ों को अडेप्ट किया है, चीज़ों को सीखा है, समझा है, और अपने जीने को आगे बढ़ाया है, थ्राइव करना सीखा है. तुमने राजस्थान की गर्मी में, क्योंकि धरती उसके उस क्षेत्र में तुम रहते हो, तुमने उसके हिसाब से अपने आप को ढाला है. सिमिलरली डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें डेवलप हुई हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिसेस. तो उनको ऑनर करना ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर प्ले आउट करते हैं इन चीज़ों में. ये तो मैंने छोटी सी बात कही है, बट ये बहुत गहराई से भरा हुआ सा टॉपिक है. मतलब घंटों बात कर लो तो भी कम है. सो मैं बात पहले मेरी अधूरी रह गई कि मैं वो मेमोरी मुझे ऐसे ही फ्लैश हुई रैंडमली प्रेयर करते हुए, कि मुझे मालूम पड़ा कि मैं कितना दिल से क्लियर रहा हूँ लोगों की तरफ, जो भी हर चीज़ को लेके अप एंड डाउन मेरे रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, वो मेरे खुद की पर्सनल जर्नी रही है. बट एक बात से मैं सुपर प्राउड हूँ, एक बात के लिए मैं सुपर प्राउड महसूस करता हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा आई कैन
No, I would never trade it. Like that's the biggest prize I would say that I have in my life experiences so far. मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने कभी किसी के साथ में कोई नीच हरकत नहीं करी है, मैंने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने किसी को ऐसा कुछ ख़तरनाक कोई दुख भी नहीं दिया है। मतलब कि अनजाने में तो हम कभी कभार गुस्से में आवाज़ उठा के बात कर देते हैं गुस्से में, वो गुस्से का पार्ट हो गया। बट मेरे कहने का मतलब कई लोग ना बहुत ही डार्क चीज़ें करते हैं, मतलब उनके मन में कुछ होता है बट वो रह किसी और तरीके से रहे होते हैं, और आप सिंपली ज़िंदगी उनके साथ में बिता रहे हो बट बाद में मालूम पड़ता है वो लोग वैसे थे ही नहीं कभी भी। सो इस बात से मुझे बहुत प्राउड है। इनफैक्ट मेरे जो रिलेशनशिप भी रहे हैं, हैंडफुल ऑफ रहे हैं जिन लोगों के साथ में, एंड में जब भी उनसे टकराया हूँ उनका भी ये मानना है कि मैं दिल से हमेशा क्लियर और प्योर, हमेशा उनकी नज़र में प्योर और क्लियर था। बस हर इंसान की तरह मुझ में सैकड़ों खोट है, और अभी भी है, और तब तो और थे पहले। मेरा गुस्सा बहुत ही ख़तरनाक था पहले, और वो गुस्सा हर चीज़ को ओवरशैडो कर देता, जिस तरह मैं चीज़ों को डील करता था। बहुत इराटिक गुस्सा, बता नहीं सकता मैं। सो वो चीज़ों को छोड़ के लोग कहते थे कि मैंने कभी नीच हरकत नहीं करी, किसी को नीचा नहीं दिखाया। मैं खुद बहुत हम्बल बिगिनिंग से आता हूँ, और अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ। मैंने कोई बड़ी कोई ग्लोरी देखी नहीं लाइफ में, बट मैंने कभी भी जिनके पास में थोड़े से कम पैसे होंगे मुझसे, मैंने कभी भी ज़िंदगी में कभी मेरे मन में ऐसा आया भी नहीं कि मैं उनसे बेटर हूँ या फिर वो मुझसे कम है। और सिमिलरली अगर कोई बंदा बड़ी गाड़ी लेके फ्लैश कर रहा है मेरे सामने, या फिर किसी के पिताजी बहुत बड़े कोई आदमी हैं और वो दूसरा उनका बेटा, वो उनका बेटा है जो भी इंसान, मैंने उसको भी कभी ऐसा नहीं जताया कि मैं तो उससे कम हूँ या फिर तू मुझसे ज़्यादा है। सो आई थिंक मुझे लोग अच्छे लगते हैं। अगर लोग अच्छे लगते हैं तो कोई भी क्यों ना हो, मैं तुमसे बातें करूँगा, तुमसे मिलने आऊँगा मैं। और मैंने कभी भी कोई नीच हरकत नहीं करी है दोस्ती निभाने में भी। और आई हैव स्टेप्ड इनटू माय फ्रेंड्स फाइट्स वेयर आधे लोग सारे निकल गए और एंड में मैं ट्रबल में रहा हूँ, और मैं प्राउड महसूस करता हूँ इन चीज़ों को लेके। भगवान का आशीर्वाद रहा है, इसलिए मैं कभी फंसा नहीं चीज़ों में। और कभी ज़िंदगी में मैंने अपने किसी दोस्त को कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी ज़िंदगी में कोई छोटी हरकत नहीं करी, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करी। या रोस्टिंग अलग होती है, वो तो दोस्ती यारी में बैंटर चलता है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब आजकल की दुनिया में सबके दिल इतने छोटे हो चुके हैं कि इंसान रहा नहीं है अभी, वो लोगों को नापता तोलता है। और किस बुनियाद पर? सबसे बड़ी कॉमेडी बात तो ये है कि जो 4 लोगों को लगता है आजकल कि हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि 1-2 लोगों को हमारे जीवन में ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उन्होंने 4 चीज़ें कर ली तो दे हैव गॉन अहेड। बट सच तो ये है भाई, कोई कहीं पर भी नहीं गया, सब अपनी जर्नी में लगे पड़े हैं, सब इधर ही है, यही सांस ले रहे हैं, सबको यही दिन मिल रहा है आज का दिन। ऐसा नहीं कि भगवान ने उन लोगों को एक्स्ट्रा एक दिन आगे दे दिए तो वो आगे वाले दिन में, आज के दिन में नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि वो आज के दिन में सिर्फ नॉर्मल लोग थे और वो अमीर लोग आगे चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान की नज़र में सब सेम है। तो अगर जब भगवान की नज़र में सेम है तो फंडामेंटली तुम्हारी भी नज़र वही है। डीप डाउन तुम्हारी जो ट्रू साइट है, तुम्हारा जो ट्रू विज़न है, वो भगवान का ही विज़न है। तभी तो क्या हम भगवान का ही तो अंश है, क्रिएटर का ही तो अंश है। तो हम ये बात क्यों भूल जाते हैं? हम उनको एक्स्ट्रा ट्रीट क्यों करते हैं, और जो लोग चैलेंज्ड हैं हम उन लोगों को नकारते क्यों हैं? मैंने तो ये भी जाना है कि यार जो रिश्ते जो होते हैं, सबसे जो लोग रिश्तों के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट देयर इज़, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ टिंट यू कैन से, और सम सॉर्ट ऑफ ग्लास तुम्हारी आंखों में पहना देता है रिश्ता। उसकी आड़ में इंसान कुछ भी करवाता है दूसरों से इमोशंस की बुनियाद पर। आई फील एज आई हैव ग्रोन, आई फील one category of people that annoys me the most and that irritates me the most, and I'm working upon my heart to be gentle upon such situations. They are the emotional people. I do not like emotional people at all. They are the weakest kinds. They are weak and they just disgust me. Now what do I mean by emotional people? I have been an emotional person. I still am an emotional person. I'm a deep emotional, I'm a really very deep emotional person. But what I'm trying to say is, when I say about कि I don't like emotional people, I'm referring to the so-called emotional people who are not even emotional. They are just needy people.
Because if you are truly an emotional person, you will do something about it. You will do something it will change your heart. When something hurts you so much all the time, everything that you see, it pains your heart. It will inspire you to bring a change in your heart. It will inspire you to be the courageous person. It will inspire you to be the beacon of hope. It will inspire you to be the person जिसको देखकर लोगों को आस मिले, जिसको देख के लोगों को होप मिले, जिसको देख के लोगों को लगे कि वो कभी नहीं गिरा भाई, हम भी नहीं गिरेंगे. बट डीप डाउन जो भी लोग ज़िंदगी में इतने करेजियस रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में आज भी इंस्पायर होते हैं, जिनको गए हुए 100 से भी ऊपर साल हो चुके हैं, वो लोग इतने महान लीडर इसलिए बने क्योंकि वो लोग ट्रूली इमोशनल पीपल थे. बट जो दुनिया में जो आजकल इमोशनल लोग जो चल रहे हैं, जो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लिटिल एनीबडी, सो कॉल्ड एनिमल सेवियर जो बने पड़े हैं, और जो वीगनिज्म जो चल रहा है, ये जो इतना बड़ा प्रचार चल रहा है जिसकी बुनियाद पर लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं एक दूसरे से, ये दे आर द काइंड ऑफ इमोशनल पीपल दैट आई एम रेफरिंग टू, जिनसे मुझे नफरत है. लाइक दे आर डिस्गस्टिंग पीपल. एंड द फनी थिंग इज़ द होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ देम. दे आर इन मेजॉरिटी. एंड these emotional people are the signs of them is they'll be stuck in relations, family relations, family WhatsApp groups and bullshit. So I feel a true emotional person is somebody who learns to lean onto his or her own spine, and a true emotional person is somebody who feels the pain for himself, and from his pain feels the pain of others as well. That is why an emotional person, a truly emotional person, would not weigh other people down, would not put his own weight upon other people, would not use them, would not hurt them. Even if they need human beings to be there by their side, even when they are scared, they will empathize first before seeking help. They'll be like that person must be feeling the same way the way I am feeling as well. What is a higher way to this? What is a better way to deal with this? Where nobody feels the pain, where's nobody is dragged down, where nobody takes the weight. The answer will lead you to only one place, and that is the path of faith. That is the path of truth. That is the path of looking within and working upon your own heart. Maximum people are lazy people, and they are the one who are claiming to be emotional people. They don't want to do that hard thing. It is easy to latch upon another human being for emotional needs. It is very easy to do that, and not giving a shit about how that person is feeling in taking care of you or looking after you. वो बंदा बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो the fact you can rely upon that person is only cause वो person भी allow कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि sometimes when we are attached to something so much, we lose the sight of where to draw the boundary. Or where to draw the boundary of knowing that this is where I look after myself, and this is where you should be dealing with this. And that is when the other person who is trying to help the so-called emotional person feels depleted, somewhere broken, shattered, because that person won't have anywhere else to go. Because बाकी सब तो तुमने ले लिया, खींच लिया, चूस लिया. तुम अभी भी बाज नहीं आओगे, तुम दोबारा आओगे, क्योंकि ये नीड ये प्यास, ये जो भी थर्स्ट है, ये बुझती नहीं है. ये जो वेरियस जो फेलोशिप टाइप ग्रुप्स चलते हैं, जो मैं इनको बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, ना उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बट मैं जनरली बोलना चाह रहा हूँ. ये जो कम्युनिटीज़ जो हैं, इनकी बुनियाद क्या है? सब नीडी लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे बैठ के अपने दुखड़े गाते हैं. कोई भी बंदा रेडी नहीं है अपने ऊपर काम करने के लिए. बस दुखड़े गाओ बैठ के. एक कम्युनिटी में अगर एक बंदा इवॉल्व हो गया ना, वो दैट पर्सन ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द कम्युनिटी एंड स्टॉप शोइंग अप. सारे कम्युनिटी वाले उसके अगेंस्ट हॉस्टाइल हो जाएंगे. दे आर दैट अग्रेसिव पीपल. नाउ दिस इज देयर ट्रू साइड. Being emotional just some sort of a cover.
These emotional needy people are the most violent and aggressive kind of people. You just have to pull the plug of the supply. Somebody who gives you the support, so called, and you are reaching out to them. One day they are having a hard day and they were not there. You won't forgive them. You will be like, how dare you? How, like, that's what your inner dialogue is. Loki is like that person becomes your slave. वाह what a insane topic. 20 मिनट का पॉडकास्ट बना दिया भाई मैंने तो. चलो गाइस बाय. मुझे खांसी खराश हो रही है. आई नीड टू मेक अ कॉफ़ी. आई नीड टू मेक कॉफ़ी, सॉरी. Bye, take care, see you, and we are on 46 podcast. Journey is a little difficult, but I'm really enjoying it. And 46 down, endless to go. Bye, guys.